आइज़ाया 19, 20, 21, 22 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। आइज़ाया 19, 20, 21, 22 चैप्टर। फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे हम BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 19, 20, 21, 22 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। चैप्टर 19 किंग जेम्स वर्शन में से। कंफ्यूजन ऑफ इजिप्ट, कॉलिंग ऑफ इजिप्ट इनटू द चर्च। फर्स्ट वर्स से, The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it, and I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof, and I will destroy the counsel thereof, and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards. And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord, and a fierce king shall rule over them, saith the Lord of hosts. And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up, and they shall turn the rivers far away, and the brooks of defense shall be emptied and dried up, the reeds and flags shall wither. The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and everything sown by the brooks shall wither, be driven away and be no more. The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish. Moreover, they that work in fine flax, and they that weave networks shall be confounded, and they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish. Surely the princes of Zoan are fools. The counsel of the wise counselors of Pharaoh is become brutish. How say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings. Where are they? Where are thy wise men? And let them tell thee now, and let them know what the Lord of hosts hath purposed upon Egypt. The princes of Zoan are become fools. The princes of Nob are deceived. They have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof. The Lord hath mingled a perverse spirit in the midst thereof, and they have cast Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit. Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush may do. In that day shall Egypt be like unto woman, and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts, which he shaketh over it. And the land of Judah shall be a terror unto Egypt. Every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself because of the counsel of the Lord of hosts, which he hath determined against it. In that day shall 5 cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the Lord of hosts. One shall be called the city of destruction. In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. And it shall be
and it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and he shall send them a Saviour and a great one, and he shall deliver them. And the Lord shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, and shall do sacrifice and oblation. Yea, they shall vow a vow unto the Lord, and perform it. And the Lord shall smite Egypt, he shall smite and heal it, and they shall return even to the Lord, and he shall be entreated of them, and shall heal them. In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians. In that day shall Israel be the third with Egypt, and with Assyria even a blessing in the midst of the land, whom the Lord of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, mine inheritance. होली स्पिरिट हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, इसमें तो हम में प्रवेश कर और हमसे बातें कर कि ये वचन क्या है और ये वचन की गहराई क्या है। इस वचन को तो हमें सेंट मेंट खुल कर बता दे, हमें जाहिर कर इन वचनों के भेदों को। हमें इन वचनों को एक बंद पड़े हुए डिब्बे के समान छोड़ देने मत दे। इन वचनों को हमारे जहन में उतरने दे, हमारे चित्त में, हमारी समझ में उतरने दे, और हम इसे समझते हुए पढ़ने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Chapter 20. By the prophet walking naked and barefoot 3 years in prefigured the shameful captivity of Egypt and Ethiopia. First verse. In the year that Tartan came unto Ashdod, when Sargon the king of Assyria sent him and fought against Ashdod and took it, at the same time spake the Lord by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot. And the Lord said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot 3 years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia, so shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt. And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation, and of Egypt, their glory. And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such is our expectation, whether we flee for help to be delivered from the king of Assyria, and how shall we escape? Chapter 21. The fall of Babylon by the Medes and Persians, warning to Edom, Arabia's calamity. First verse से पढ़ेंगे। The burden of the desert of the sea, as whirlwinds in the south pass through, so it cometh from the desert, from a terrible land. A grievous vision is declared unto me. The treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam, besiege, O Media. All the sighing thereof have I made to cease. Therefore are my loins filled with pain. Pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travelleth. I was bowed down at the hearing of it. I was dismayed at the seeing of it. My heart
panted fearfulness affrighted me. The night of my pleasure hath he turned into fear unto me. Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink, arise, ye princes, and anoint the shield. For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth. And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels, and he hearkened diligently with much heed. And he cried, A lion, my Lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime. I am set in my ward whole nights. And behold, here cometh a chariot of men with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground. O my threshing, and the corn of my flour, that which I have heard of the Lord of hosts, the God of Israel, have I declared unto you the burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night. If ye will inquire ye return. Come. The burden upon Arabia in the forest, in Arabia shall ye lodge. O ye travelling companies of Dedanim, the inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty. They prevented with their bread him that fled. For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war. For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail, and the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar, shall be diminished, for the Lord God of Israel hath spoken it. Chapter 22, Invasion of Jewry by the Persians. First verse say, The burden of the valley of vision, what aileth thee now, that thou art wholly gone up to the housetops, thou that art full of stirs, a tumultuous city, a joyous city? Thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle. All thy rulers are fled together, they are bound by the archers. All that are found in thee are bound together, which have fled from far. Therefore said I, Look away from me. I will weep bitterly. Labor not to comfort me, because of the spoiling of the daughter of my people. For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity by the Lord God of hosts in the valley of vision, breaking down the walls, and of crying to the mountains. And Elam bare the Kir with chariots of men and horsemen, and Kir uncovered the shield. And it shall come to pass that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate. And he discovered the covering of Judah, and thou didst look in that day to the armor of the house of the forest. Ye have seen also the breaches of the city of David, that they are many, and ye gathered together the waters of the lower pool, and ye have numbered the houses of Jerusalem, and the houses have ye broken down to fortify the wall. Ye made also a ditch between the two walls for the water of the old pool, but ye have not looked unto the maker thereof, neither had respect unto him
that fashioned it long ago. And in that day did the Lord God of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth. And behold, joy and gladness, slaying oxen, and killing sheep, eating flesh, and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. And it was revealed in mine ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord God of hosts. Thus saith the Lord God of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, which is over the house, and say, What hast thou here? And whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a sepulchre here, as he that heweth him out a sepulchre on high, and that graveth an habitation for himself in a rock? Behold, the Lord will carry thee away with a mighty captivity, and will surely cover thee. He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country. There shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy Lord's house. And I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down. And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah, and I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand. And he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. And I will fasten him as a male in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups even to all the vessels of flagons. In that day, saith the Lord of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall, and the burden that was upon it shall be cut off, for the Lord hath spoken it. थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमको इन वचनों के गहरे भेद, छिपी हुई बातें जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, कभी नहीं जानी, ऐसी भेद की बातें जो केवल परमेश्वर जानता है, इन वचनों के अंदर की बातें पवित्र आत्मा हमें तो जाहिर करने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। यशायाह की भविष्यवाणी 19, 20, 21, 22 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। ओह जीसस। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरोध उभारूंगा, और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी। हालेलुया।
और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनहों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। आहा परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा हालेलुया। और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 5 वचन से आगे, समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी का तट उजड़ जाएगा, और उसके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका पता तक न लगेगा। सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। हालेलुया, आई थैंक यू आबा, थैंक यू। 10 वचन, मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। 11 वचन से आगे, निश्चय सोवन के सब हकीम मूर्ख हैं, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। हालेलुया। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं के संतान हूँ? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताए। सोवन के हकीम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। मिस्र परमेश्वर की उपासना करेगा। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा। हालेलुया। और उन्हें मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे। हालेलुया। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। हालेलुया। देखो, अन्य जातियों को भी परमेश्वर रास्ता दिया है। इस प्रकार से न्याय किया जाता है, ध्यान रखना। मैंने बोला ना, हम इफिसियों की पत्री पढ़ रहे थे तभी हम न्याय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं बलिदानों का नहीं, मैं दया को चाहता हूँ। मैं दया चाहता हूँ, मैं बलिदान नहीं चाहता, ऐसा बोला ना। तो वो वचन के आधार से ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कैसे न्याय किया जाता है। यहोवा मिस्रियों को मारेगा,
ओके, हमने पनिश करना है, स्पिरिचुअली परमेश्वर से मांगना है लोगों के ऊपर पनिशमेंट आए ताकि उनके अंदर का जोश, पाप करने का जोश ख़त्म हो जाए। ओके, वह उनको पनिश करेगा, फिर वो चंगा भी करने के लिए मांगना है और फिर बाद में उसकी ओर फिरने के लिए भी मांगना है, और जब वो प्रार्थना करेंगे तो उनको चंगाई मिलने के लिए भी मांगना है। ये प्रकार से हमने न्याय कर सकते हैं। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अश्शूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। तो इस प्रकार से फिर आप और हम, कोई भी अन्य जातियाँ, कोई भी जो दूसरे भक्ति भाव में चलने वाले लोग ऐसे नहीं रहेंगे। सब इकट्ठे मिलकर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके परमेश्वर का भय रखते हुए चलेंगे। इस प्रकार का माहौल तभी आएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे 22 वचन को। ठीक है, और प्रेरित पौलुस ने भी यही कहा है कि गुस्सा करो लेकिन एक दूसरे को फाड़ खाए ऐसा गुस्सा मत करो कि एक दूसरे नाश हो जाए, ऐसा गुस्सा मत करो। ओके, क्रोध को अवसर दो, क्रोध करो लेकिन ऐसा क्रोध मत करो कि आप एक दूसरे का सत्यानाश कर दो, ऐसा नहीं करना है। 24 वचन से आगे, उस समय इस्राएल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इस्राएल। देखो, अश्शूर, मिस्र अब परमेश्वर अपनी ओर भी लेने के लिए तैयार दिखा रहा है ना। तो हम अन्य जातियों से या हमारे परिवार में जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं, उनको भी हम परमेश्वर में लाने का रास्ता 22 वचन है। ओके, नग्न भविष्यद्वक्ता का चिन्ह, फर्स्ट वर्ष से 20 अध्याय पहले वचन से, जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अश्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी ज्योतियाँ उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया कि मिस्र और कुश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्र और कुश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कुश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे, और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। बेबीलोन के पतन का दर्शन, 21 अध्याय पहले वचन से, समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर, हे मादे, घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूँ। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता, मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण बना कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हकीमों, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यों कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। जब वह सवार देखे जो 2-2 करके आते हो और गधों और ऊँटों के सवार
तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रात पहरे पर काटी, और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। हे मेरे दाए हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। एदोम के विषय संदेश 11 वचन से आगे। दूमा के विषय भारी वचन, सेयर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब के विषय संदेश 13 वचन से आगे। अरब के विरुद्ध भारी वचन, हे ददानो, बटोहियो, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से, वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा, और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। यरूशलेम के विषय संदेश 22 अध्याय पहले वचन से। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और उद्यम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझमें जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए वे एक संग बंदी बनाए गए। यद्यपि वे दूर भागे थे, इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख बिलख कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए है और कीर ढाल खोले हुए है। तेरी उत्तम उत्तम तराइयाँ रथों से भरी हुई होगी और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत है, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं, आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की। निश्चय तुम तीनों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। हालेलुया।
शेबना को चेतावनी। 15 वचन से आगे, सेनाओं का प्रभु यहोवा यो कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राज घराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कहे, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहाँ तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वही रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से धकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कस कर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने को की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। हालेलुया। और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में दिया है ये 23 वचन, मैं उसको दृढ़ स्थान में खुंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियाँ, सब उस पर टांगी जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये नए नियम में, नए सृष्टि के विषय में, यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में और यीशु मसीह के विषय में है ये वचन। 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो भी है आगे का वचन 24, 25 तक, ये यीशु मसीह की कलीसिया और नई सृष्टि, इसका भेद बताता है ये वचन। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में देखेंगे क्या है आज। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन हम सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि इसकी भेद रहस्य के पिता बातें भी तूने हम में प्रकट की, जाहिर की। ये बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आई थैंक यू होली स्पिरिट एंड आई लव यू होली स्पिरिट। थैंक यू आबा, थैंक यू। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारे धन्यवाद की प्रार्थना को स्वीकार करने की हम तुझसे विनती करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 1 chapter 14 वर्स से 23 वर्स, 1 Kings 1 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन से 23 वचन और पहले राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हमने अकेले में बैठकर ये 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ना है व्यक्तिगत समय में। अब आपने देखा है, बहुत अनुभव आपके हो चुके हैं कि परमेश्वर चाहता है लोगोस वचन, यानी सिर्फ पढ़ कर रखना है हमको वचनों को, फिर वो काम में आने वाले हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते जा रहे हैं, यानी हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर समाये जा रहे, भरते जा रहे हैं। ओके, ये हमारे लिए अभी कोई फायदे दिख नहीं रहे वचनों के अंदर, फिर भी हम उनको लेकर अपने अंदर ठोक ठोक कर भरना है।
ऐसे करते जाते हैं तब हमारे अंदर से परमेश्वर के इन्हीं वचनों के द्वारा भविष्यवाणी के शब्द बनाता है और हमारे जीवन के मार्ग तैयार करता है, लोगों के जीवन को बदल देता है। ओके, तो इसके लिए हमको ठोक ठोक कर अपने अंदर परमेश्वर के वचन को लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, उमड़ कर बहना चाहिए। इतना ज़्यादा भारी मात्रा में परमेश्वर का वचन हमें भर जाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये रोज हमने अकेले में बैठकर 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को पढ़ना है और ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह का आत्मा दिया है। वो हम पर दबाव नहीं डालता है कि हमने ऐसे करना है। हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता को प्राप्त करके परमेश्वर के मन से, इच्छा से हम ये काम पूरा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं ऐसा करते वक्त। ओके, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे अंदर वचन को बिठा लो पहले, फिर मैं तुम्हारे कुछ उपयोग कर पाऊंगा। ओके, तो वो चाहता है कि ये एक प्रोसेसिंग है, हम उस प्रोसेसिंग में अपने आप को सरेंडर करना है, समर्पित करना है, हमने उस प्रोसेसिंग को हम पर चलने देना है। ओके, तो ये चलने वाली बात है, तो इसमें कोई आनंद नहीं देखना है, इसके अंदर कोई ऐसा बहुत जी आनंदित खुश कर देने वाली ऐसी बातें नहीं देखना है। हमने ये देखना है ये प्रक्रिया है, हम इस प्रक्रिया से होकर गुजरना है। ओके, और ये प्रक्रिया से होकर गुजरना मतलब परमेश्वर के सेवा हम कर रहे हैं। ओके, और ये प्रक्रिया में से होकर गुजरने के वक्त में हमारा समर्पण दिखता है, हमारा परमेश्वर के आज्ञा पालन दिखाई देता है। ओके, तो हम पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसके लिए हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उन वचनों को अकेले में बैठकर पूरा पढ़ के पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ओके, हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर का प्रेम जाहिर करता है, साबित करता है। ओके, और ये अनुग्रह का आत्मा हमारी सहायता में परमेश्वर ने दिया है। हमने निश्चित परमेश्वर के इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है और 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर चाहता है वैसा वचन के द्वारा बनाया गया बर्तन होकर हम निखर कर आएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा इन वचनों को पिता हमें फिक्स कर हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। हमारे परमेश्वर पिता जो चाहता है डेस्टिनी में हमें पहुंचाने के लिए, हम उस डेस्टिनी में पहुंचे हुए प्राप्त हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।